By inviting them to revisit, rethink, and re engage with the initiative, the series embodies the spirit of continuity, intellectual generosity, and shared growth. So, you all are welcome to another GSTS Reconnect series. कोविड काल की चुनौतियों के बीच 7 फरवरी 2021 को डॉक्टर मनीष करवार ने श्यामलाल कॉलेज इवनिंग की इतिहास सोसाइटी साक्ष्य के साथ मिलकर एक सार्थक पहल की शुरुआत की। यह पहल बाद में स्नातक विद्वान वार्ता श्रृंखला, जिसे हम अंग्रेजी में ग्रेजुएट स्कॉलर्स टॉक सीरीज के नाम से जानते हैं, और इसका मूल उद्देश्य था विभिन्न विषयों पर गंभीर अकादमिक संवाद और ज्ञान विनिमय के लिए एक खुला, लोकतांत्रिक और समावेशी मंच तैयार करना। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इसमें जुड़े, अलग-अलग वक्ताओं ने इसमें भाग लिया और उनके योगदान ने न केवल विद्यार्थियों के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार किया, बल्कि महत्वपूर्ण विषयों पर बहुआयामी चिंतन को भी प्रोत्साहित किया। पिछले 5 वर्षों में, और ये छठा वर्ष है, जीएसटीएस ने अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए 269 टॉक्स का ये महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा किया है, और इसी के साथ इसकी निरंतरता, इसका विकास और इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। ये इसके बढ़ने का एक सतत प्रमाण है। यह पहल इस विचारधारा पर टिकी है कि युवा विद्वान ही भविष्य के ज्ञान संरचनाकार हैं, और उन्हें अपनी शोध, विचार और अनुभव साझा करने, सार्थक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और नए बौद्धिक आयाम विकसित करने का अवसर देकर जीएसटीएस एक जीवंत शैक्षणिक समुदाय का निर्माण कर रहा है। और यह मंच न केवल संवाद को मजबूत करता है, बल्कि नए सहयोगों, नए दृष्टिकोणों और ज्ञान नई ज्ञान परंपराओं के विस्तार को भी गति देता है। And with this, it also gives me immense pleasure to acknowledge the remarkable achievements of this initiative. Over the years, it has been honored 3 times by Doordarshan, has also been recognized in the Times of India. Under the G20 Changemaker Summit, one of the sessions was broadcasted live internationally and further amplifying the reach and impact of our work. Alongside these recognitions, we have also forged meaningful collaborations with educators and academic institutions across the country. And these accomplishments stand as a strong testimony to the dedication, vision, and consistent efforts of the GSTS team, which includes our founder and advisor, Dr. Manish Kanwar, sir, and the moderators, Mr. Ajay Gupta, Mr. Shubham Tiwari, Mr. Saurabh Singh, Ms. Manvi Saraswat, Ms. Samriddhi Kanpal, and Mr. Manthan Darle, Mr. Ankit, and Ms. Shrishti Rajput, whose contributions have been essential to the growth and success of this initiative. And with this introduction, with this detailed introduction, actually, we warmly welcome our today's guest of honor, Dr. Rakesh Kumar Rajak, for this 270th talk session of Graduate Scholars Talk Series. Sir, you're welcome to GSTS. And before I invite you for your initial remarks and for your permission to proceed the session further, I would like to introduce you to our today's audience. So, Dr. Rakesh Kumar Rajak is an accomplished scholar and dedicated academician currently serving as an assistant professor at Shamlal College Evening, University of Delhi. Dr. Rajak brings with him a rich academic background and a commendable record of scholarly pursuit. He has completed his PhD from Department of African Studies, University of Delhi, engaging with a profound and comparative study on the ideas and strategies of Nelson Mandela and Dr. Bhimrao Ambedkar within the broader discourse of social justice. And his research reflects not only intellectual depth but also an unwavering commitment to exploring themes of justice, equality, and transformative social thought. Dr. Rajak's academic journey affects a rare blend of rigorous research, thoughtful journey, and dedicated pedagogy, and his work engages deeply with themes that are socially urgent and intellectually expensive, making him not only a respected historian but also a scholar whose contributions enrich contemporary academic discourse. We are truly honored to have Dr. Rakesh Kumar Rajak with us today, and his presence adds immense value to this occasion, and we're looking forward to insights he will share with us. Now, I would like to invite you, sir, for your initial remarks and for your permission to start the session further. Please, sir.
Thanks, Shailendra. Thanks. And thanks to Manish sir for giving me this opportunity in 217 GSTS। सर ने जिस तरीके से अभी इस आपने जो बोला कि 7 फरवरी 2021 को जिस जीएसटीएस की नींव मनीष सर ने रखी वह एक आपदा में एक अवसर के तौर पे था और उस अवसर ने न जाने कितने लोगों को जोड़ा और जोड़ते हुए यह दिल्ली विश्वविद्यालय का यह जो पूरा एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म में देखिए कितना मतलब कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। प्रिय अनुज भास्कर इसी जीएसटीएस के प्लेटफॉर्म पे 122 में जब आए थे उस समय में दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से उनकी पढ़ाई ग्रेजुएशन की हो रही थी और उन्होंने जो टॉपिक उनका था मैजिक ऑफ लाइट। मैजिक ऑफ लाइट कहने का मतलब प्रकाश का जादू। सुनने में भले ही जादू जैसा लग रहा हो लेकिन यह असल में प्रकाश के अद्भुत गुणों और प्रभावों को समझाने का एक आसान तरीका था। और साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि प्रकाश की वजह से ही हम इस दुनिया को देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जीएसटीएस की वजह से एक बौद्धिकता के तरफ जो है हम लोग दिन प्रतिदिन जो है सो बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से प्रकाश अपना रंग और छटा बिखेरती है ठीक उसी तरीके से जीएसटीएस जो मनीष सर के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और यह टीम जो है सो दिन प्रतिदिन आगे पॉजिटिविटी के साथ बिना रुके बिना थके बिना हारे, चाहे वह ठंड हो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी, सब में दिन प्रतिदिन हम लोग एक कदम बढ़ते जा रहे हैं। और यह 270 जो सीरीज आज पूरा करने जा रहे हैं उसमें एक ऐसा क्षण आ रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आज हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो उत्तराखंड में है वहां पे जहां पे हमारे ही यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्री प्रकाश सर जो वहां के वाइस चांसलर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री प्रकाश सर का जो आशीर्वाद जो उनका ब्लेसिंग इस जीएसटीएस को मिला ठीक उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आज प्रिय अनुज भास्कर और श्री प्रकाश सर का जो उस समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी में साथ साथ थे और आज जो है सो हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में भी दोनों साथ साथ एक विद्यार्थी के तौर पे और एक दूसरे वाइस चांसलर के तौर पे यह दोनों में ही एक समानता ही दिखाई दे रही है। और यह जीएसटीएस इस प्लेटफॉर्म को एक समान इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए यह एक महती भूमिका जो अपनी निभाई, इसके लिए मैं मनीष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसरों को, जितने इंटेलेक्चुअल्स प्रोफेसर हैं, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ करके इस श्यामलाल कॉलेज की तरफ से और इस श्यामलाल कॉलेज में जो पढ़ाने का अवसर भी हम लोगों को अगर मिला और इसमें जीएसटीएस जो अलग अलग जगहों पे अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो यह जरूर यह बात आती है कि आप श्यामलाल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो जीएसटीएस वहां पे चलता है, तो इसका क्या अनुभव है। तो इसके लिए मनीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने भी एक नई ऊंचाइयों पे हम लोगों को ले जाने के लिए जीएसटीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिए जिससे हम लोगों की एक पहचान जो है आगे निरंतर बनती जा रही है। इसके लिए मनीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो टॉपिक है नॉन हर्मिशन क्वांटम मैकेनिज्म, इस पे आज जो हमारे प्रिय अनुज छोटे भाई भास्कर जो बोलने वाले हैं। और इस टॉपिक को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा अपना जो 10+2 में जब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी में लेकर के जब पढ़ रहा था उस समय जब पूरी सारी चीजों को जो है तो मैं आज रिकॉल कर रहा हूँ और मैं आज यह जब बोलेंगे तो मैं सुनूंगा तो फिर अपनी उस पुरानी दिनों में लौट करके जाऊंगा और फिर मुझे कुछ इस पे कुछ बोलने का मौका मिलेगा लास्ट में, तो फिर मैं कुछ इस पे सलाह और सुझाव भी दूंगा। इसके लिए मैं प्रिय अनुज भास्कर को जो है आगे की प्रक्रिया में बढ़ने के लिए अनुमति प्रदान हाँ, करता हूँ।
Yes, maybe Salens have Granting some the network problem. approval. So Bhaskar, yeah, go ahead. Salens, you are having some network problem. Okay, no issues. So thank you very much, Salens and Dr. Rakesh. So Bhaskar, go ahead for your presentation. Thank you very Yeah. much. Thank you, Rakesh sir, for introducing my previous topic, as well as like connecting Delhi University with HNVG Garhwal University. And I would also like to thank Challenge for introducing GSTS to us. Okay, before that, now I will be sharing my presentation. Okay, is my presentation properly or Uh, visible to everyone? yes, it is properly Okay, visible. okay. So a very good evening to one and all present here. My name is Bhaskar Singh Rawat, and as Sir has already introduced me, that I am a postgraduate scholar there in HNB Gadwal University. And before going through the presentation, I would like to take a moment to actually thank GSTS. पिछली बार भी GSTS has provided me this opportunity to present my views on light. और इस बार भी like now right now I'm in my masters and still GSTS has provided me this opportunity to present myself here. So thank you, GSTS. Also, I would also like to thank our guest of honor, Rakesh Sarji. And with that, now I would like to go through my presentation. So non-Hermitian quantum mechanics. So non-Hermitian quantum mechanics को understand करने से पहले I will be going through one very basic example जो मैं पूरे presentation के through continuum में रखूंगा. हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कि हम एक फ्लास्क लेंगे जिसको हम थर्मस भी कहते हैं. उस थर्मस में हम पानी डाल देंगे और अगर हम उस थर्मस में पानी डालते हैं तो एनर्जी जो है वो उस थर्मस के अंदर कंजर्व रहती है क्योंकि वो हीट को बाहर ट्रांसफर नहीं होने देता. उसी की अगर हम दूसरी हैंड में अगर हम नॉर्मल बॉटल लेते हैं और उस नॉर्मल बॉटल में पानी डालते हैं तो दैट हीट इज नाउ गेटिंग ट्रांसफर टू द सराउंडिंग. तो वो एक नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है. तो एक कंजर्वेटिव सिस्टम और एक नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम. फिजिक्स में जनरली हम किस चीज की स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम्स की. बट नॉन हर्मिशियन क्वांटम मैकेनिक्स हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम जिसमें थर्मस में जैसे पानी है उसको हम अच्छे से स्टडी कर सके. और कैसे हम नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम से हम आइडियाज लगा सकते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम्स के बारे में. इस चीज को नॉन हर्मिशियन क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से डिफाइन करता है. यहाँ पे एक मैंने बहुत प्यारा सा टर्म लिखा है, कॉम्प्लेक्स कैन बी ब्यूटीफुल. तो व्हाट डज इट मीन? एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो मैथमेटिक्स में है, जिसमें क्या होता है एक रियल टर्म होता है और एक इमेजिनरी टर्म होता है. तो ये पूरी नॉन हर्मिशियन क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी जो है वो इसी रियल और इमेजिनरी टर्म्स के आधार पर है. एंड वी विल बी गोइंग थ्रू दिस ऑल थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन. जो नॉन हर्मिशियन क्वांटम मैकेनिक्स है ये बहुत ही ज्यादा लाइक अननोन फील्ड है. इसीलिए आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में यू कैन सी दिस मीम वेयर दिस पर्सन इज सेइंग दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट नॉन हर्मिशियन फिजिक्स एंड द अदर पर्सन इज लाइक हाँ, बिकॉज इट this particular field is so underknown by the general domain, and I believe that DSTS had provided me this opportunity to actually present the general public about this non-Hermitian quantum mechanics. तो शुरू करने से पहले हमें ये बेसिक क्वेश्चन हमें जानना पड़ेगा, व्हाट डू वी मेंट बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स? कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स क्या है? तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा है कि एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है. और जैसा कि हमें पता है कि जो स्पेस है जो एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल स्पेस होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में क्या हो जाएगा? 6 डायमेंशंस का बन जाएगा, जिसमें 3 रियल पार्ट होंगे और 3 इमेजिनरी पार्ट होंगे. तो अभी हमारा क्वेश्चन है क्या कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें कुछ रियल पार्ट है और कुछ इमेजिनरी पार्ट है, क्या ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं? और इसका आंसर है कि ये हाँ कर भी सकते हैं और शायद ना भी करे, क्योंकि थ्योरेटिकली हमने ये प्रूव कर दिया है कि ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं. बट एक्सपेरिमेंटली वी नीड मोर टेक्नोलॉजी टू स्टडी दिस. तो अब इस पूरी पीपीटी में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे हाउ वी कैन एक्चुअली थ्योरेटिकली प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स.
नाउ व्हाट इज नॉन हर्मिशियन फिजिक्स? तो फिजिक्स में क्या होता है कि किसी भी ऑब्जर्वेबल एनर्जी को हमें अगर निकालना है किसी भी सिस्टम, जैसे कि वो थर्मस में जो पानी है, अगर हमें उसकी एनर्जी निकालनी है, या फिर नॉर्मल बॉटल में जो पानी है अगर हमें उसकी एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हम फिजिक्स में एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसको हम हैमिल्टोनियन कहते हैं। यहाँ पे आप एच कैप से देख सकते हैं। तो ये जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, जब ये मतलब सिस्टम्स में लगता है, तब उसके बाद हम उसकी एनर्जी को निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है कि थर्मस एक सिस्टम हो गया और एक नॉर्मल बॉटल का सिस्टम हो गया। तो हम दोनों के लिए हैमिल्टोनियन क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसा कि मैंने कहा कि फिजिक्स में भी जनरली स्टडी दी कंजर्व्ड सिस्टम। तो ये जो हैमिल्टोनियन है ये हम लेते हैं हर्मिशियन। हम लेते हैं ये हर्मिशियन क्योंकि हर्मिशियन से क्या होता है, एनर्जी हमेशा रियल आती है, मतलब कंजर्व्ड आती है। तो अगर एनर्जी रियल है, एनर्जी कंजर्व्ड है, तभी जाके वो सिस्टम क्या होगा कि हम उसको कह पाएंगे कि उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, मतलब वो एक नॉर्मल, मतलब वो एक थर्मस की तरह है। लेकिन जहाँ क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे ऐसे सिस्टम्स की स्टडी करनी है जहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो उसके लिए हमें इस हैमिल्टोनियन को नॉन हर्मिशियन लेना पड़ेगा। इसलिए हमें इसे लेना पड़ेगा नॉन हर्मिशियन। अब सवाल ये आता है, क्या एक्चुअली में जो एनर्जी है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है? मतलब क्या एनर्जी में भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो सकता है? क्या हैमिल्टोनियन को हर्मिशियन लेना जरूरी है? क्या हमेशा ही मतलब उसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम नॉन हर्मिशियन ले ले हैमिल्टोनियन को, मतलब कि हम नॉर्मल बॉटल की स्टडी करें और किसी तरह से हम थर्मस की एनर्जी निकाल सके, एक कंजर्व्ड सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर सके? यहाँ पे मैं एक फन फैक्ट बताना चाहूंगा कि नॉन हर्मिशियन फिजिक्स में एक्चुअली में टेलीपोर्टेशन के बारे में स्टडी करा गया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि एक पार्टिकल कॉम्प्लेक्स प्लेन से जाके एक काइंड ऑफ टेलीपोर्ट कर सकता है। तो वो हमें ऐसे दिखेगा कि एक पार्टिकल यहाँ पे आया और ऑन एंड सडन अचानक से वो यहाँ पे आ गया बिना कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करे। तो यहाँ पे ये उस पेपर का यहाँ पे क्या कहते हैं साइटेशन है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकता है। उसके बाद क्वेश्चन ये है, क्या रियल सिस्टम्स का कॉम्प्लेक्स एनर्जी हो सकता है? और इसका आंसर है हाँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि नॉर्मल बॉटल में एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग, तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, नॉन कंजर्व्ड है। वैसी हमारे पास जो नॉन कंजर्व्ड सिस्टम्स की जो स्टडी है वो सबसे पहले रेडियो एक्टिव डीके में स्टडी की गई थी, जहाँ पे आप यहाँ पे एनर्जी देख सकते हैं। यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस आयोटा एच लैम्डा बाय 4 पाई आया था। तो ये जो ई नॉट है ये रियल एनर्जी है और एच लैम्डा बाय 4 पाई क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है। वैसे ही हम न्यूक्लियर ऑप्टिकल मॉडल में भी एक कॉम्प्लेक्स पार्ट स्टडी करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट देखते हैं एनर्जी का, जिसमें ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हमें रिफ्लेक्शन और एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन मतलब एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स पोस्ट टेलर पोटेंशियल है, जहाँ पे हम रेजोनेंस स्कैटरिंग प्रॉब्लम देखते हैं, और कॉम्प्लेक्स युकावा पोटेंशियल जो एक्चुअली में न्यूक्लियर फोर्स होता है जो बाइंड करता है प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, वहां पे भी हम कॉम्प्लेक्स एनर्जीज को देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डज दिस कॉम्प्लेक्स टर्म डिफाइंस? तो ये नॉन कंजर्वेटिव इफेक्ट्स को डिफाइन करता है, ये एनर्जी का लॉस और गेन को डिफाइन करता है। तो क्या अब सवाल आता है कि जो हमारा जो एनर्जी ऑपरेटर हैमिल्टोनियन है, क्या उसका हर्मिशियन होना जरूरी है? और इसका आंसर है नहीं। एक्चुअली में क्या होता है कि मैथमेटिक्स में क्या है कि जब हमारा ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन होगा, तभी उसकी एनर्जी हमेशा रियल होगी, मतलब वो कंजर्व्ड होगा। और जैसा कि हम जानते हैं एनर्जी का सिद्धांत है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सो इट बिकम्स अ नेसेसिटी टू कंसिडर द एनर्जी टू बी कंजर्व्ड। बट हमें पता है कि रियल लाइफ में देयर एग्जिस्ट ओपन सिस्टम, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी स्टडी के लिए क्या हमेशा हैमिल्टोनियन को हर्मिशियन होना जरूरी है? तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है, सीएम बेंडर ने पीटी सिमेट्रिक हैमिल्टोनियंस का एग्जांपल दिया था, वेयर ही डिफाइंड अ न्यू क्लास ऑफ हैमिल्टोनियंस। दीज आर पीटी सिमेट्रिक। पीटी सिमेट्रिक मतलब क्या है? पहला है पैरिटी, P स्टैंड्स फॉर पैरिटी एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। नाउ व्हाट इज P है, पैरिटी है। तो पैरिटी कहता है कि अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और कोई पार्टिकल माइनस एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, तो उनके फिजिक्स के जो सिद्धांत होंगे दे विल बी सेम। तो
अगर हम बोले कि यहाँ पे आप एक वो देख सकते हो, मीम काइंड ऑफ देख सकते हो, जिसमें पैरिटी वायलेशन दिखाया है कि मतलब एक इंसान अगर मिरर के सामने खड़ा है तो मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट सेम आएगी, क्या कहते हैं, उसका लेफ्ट राइट चेंज हो सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि वो मिरर में खड़ा है और उसका मिरर में जो इमेज है वो कुछ और ही एक्शन कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसे हम पैरिटी वायलेशन कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, जो हैमिल्टोनियन सीएम बेंडर ने डिफाइन करे थे वो पैरिटली कंजर्व थे, पैरिटली सिमेट्रिक थे। ये एक बहुत बढ़िया किताब है सीएम बेंडर के थ्रू, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड देन ही और शी कैन गो थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट इज टाइम रिवर्सल, टाइम में सिमेट्री। टाइम में सिमेट्री क्या कहती है कि अगर आप टाइम को पीछे लेकर जाते हो तो सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव द सेम एज इट वाज डूइंग ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। मतलब जो इवोल्यूशन के टाइम में सिस्टम बिहेव कर रहा था वो सिस्टम वैसे ही पीछे जाते हुए भी करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो ग्राम्फी जो है वो सिमेट्रिकली मूव कर रहा है पीछे की तरफ को। नाउ इस तो सीएम बेंडर ने क्या करा, उन्होंने पीटी सिमेट्रिक हैमिल्टोनियंस को डिफाइन करा और बोला कि ये पीटी सिमेट्रिक हैमिल्टोनियंस क्या है, ये नॉन हर्मिशियन है और नॉन हर्मिशियन होने के बावजूद भी इनकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा रियल आती है। तो ये अपने टाइम, उस टाइम पे अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि हमेशा सिर्फ मैथमेटिक्स ने ये कहा है कि आपको ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है वो हमेशा आपका हर्मिशियन होना चाहिए ताकि आपकी जो एनर्जी है वो रियल हो। लेकिन सीएम बेंडर ने कहा कि नहीं, जो हैमिल्टोनियन है वो नॉन हर्मिशियन भी हो सकता है और उसके हिसाब से हमारी जो एनर्जी है वो रियल भी आ सकती है। बट इसके मतलब इसके एप्लीकेशंस क्या है, तो इसके एप्लीकेशंस है ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में, मैकेनिकल सिस्टम्स में और सेंसिंग में भी इसके बहुत सारे एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज बियॉन्ड पीटी सिमेट्रिक। क्या पीटी सिमेट्रिक के अलावा भी कोई ऐसे हैमिल्टोनियंस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनकी एनर्जी रियल हो? और इसका आंसर है हाँ। और यहीं पे मेरा काम आता है। मैंने क्या करा कि मैंने एक सिस्टम डिफाइन करा, कॉम्प्लेक्स फेज स्पेस, जो हमने x1 और p2, यहाँ पे p मोमेंटम है। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने जो xyz 3 डायमेंशनल स्पेस था उसको अब हमने क्या कर दिया, हमने फेज स्पेस में ले लिया। अब फेज स्पेस में फिजिक्स में काफी अच्छा वो है, रूल है कि जहाँ पे हम 3 डायमेंशनल्स को, स्टडीज को कन्वर्ट कर देते हैं फेज स्पेस स्टडीज में, और उनका जो सिद्धांत, फिजिक्स का सिद्धांत होता है वो सेम आता है, लेकिन उससे जो स्टडी होती है वो आसान हो जाती है। तो here we have considered the extended complex phase space where a part of the space is real and the another part is complex. Next is this boundary condition. तो जब भी हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो उसकी जो वेव फंक्शन या फिर उस सिस्टम को डिफाइन करने वाला जो फंक्शन है उसको हम बोलते हैं कि वो इन्फिनिटी में जाते जाते जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरा सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और मुझे इसका एसेंस इन्फिनिटी में चेक करना है तो इन्फिनिटी में इसका एसेंस ऑफ कोर्स जीरो होना चाहिए। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशन थी इधर। उसके बाद हमारी एक ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आती है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या कहती है कि अगर मेरा जो पार्टिकल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स से मेरा एक मॉलिक्यूल मैंने ले रखा है और वो मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वहां पे 1 से नीचे कम होनी चाहिए, कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये इक्वेशन यहाँ पे यही बताती है कि पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के बराबर ही, मतलब 1 से कम होनी चाहिए या 1 के बराबर होनी चाहिए, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस को हमने लिया। तो अब हमने ओवरऑल स्टडी में क्या करा, हमने एक मॉलिक्यूल लिया, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वैसे हमने एक मॉलिक्यूल लिया, उसके बीच में हमने पोटेंशियल लिया, कॉम्प्लेक्स मोर्स पोटेंशियल। मोर्स पोटेंशियल एक्चुअली में जो रियल सिस्टम्स में पोटेंशियल होता है वही लिया, उसका बस एक एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स वर्जन ले लिया जहाँ पे हमने एक रियल पार्ट रखा और एक कॉम्प्लेक्स पार्ट रखा। अब हमने ये मॉलिक्यूल लिया और हमने इस मॉलिक्यूल में अपनी कंडीशंस लगाई और ऑर्थोगोनैलिटी और बाउंड्री कंडीशंस लगाई और हमने चेक करा क्या ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है, क्या ऐसा एक सिस्टम जिसका हैमिल्टोनियन हमने ले लिया नॉन हर्मिशियन, क्या उससे एनर्जी रियल हो सकती है, क्या वो एक सिस्टम कंजर्व हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर ओपन सिस्टम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं देन व्हाई डू वी नीड दिस कंजर्व सिस्टम। जैसे कि नॉर्मल बॉटल में जहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है वैसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे थर्मस वाले सिस्टम्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लाइक इफ अ पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली लूजिंग इट्स एनर्जी तो वो कुछ टाइम के बाद वो डिके हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। जैसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अगर एग्जिस्ट करते हैं और वो उनकी एनर्जी में लॉस हो जा रहा है तो कुछ टाइम के बाद दोस पार्टिकल विल बी नो मोर इन द रियलिटी।
लेकिन हमें ऐसे पार्टिकल्स को स्टडी करना है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हो। इसी रीजन से जो नॉन हर्मिशियन फिजिक्स जो स्टार्टिंग में स्टडी करी थी वो रेडियो एक्टिव डिकेज के लिए स्टडी करी थी, लेकिन अभी हमें जो ऐसे पार्टिकल, हमें नॉन हर्मिशियन फिजिक्स को यूज करना है, लेकिन हमें ऐसे पार्टिकल्स चाहिए जो समय के साथ गायब ना हो। तो इसीलिए वी हैव यूज दिस कंडीशन ऑफ, वी हैव एम्प्लाइड द नॉन हर्मिशियन फिजिक्स, लेकिन हमने एनर्जी को रियल रखा है, एनर्जी में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो हमें मिला क्या, हमारा रिजल्ट क्या रहा, तो हमने ये बाउंड्री कंडीशन लगाई, ये ऑर्थोगोनैलिटी एंड बाउंड्री कंडीशन लगाई, और हमारे रिजल्ट में आप यहाँ पे एक पर्पल रीजन देख सकते हैं। तो ये पर्पल रीजन क्या कहता है, ये पर्पल रीजन वो रीजन है जहां पे हमारा पार्टिकल मिल सकता है। यहाँ सफेद रीजन में हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स फेज स्पेस में ये पर्पल रीजन में ही हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा इन कंडीशंस को लगाने के बाद। और उसके बाद क्या कहते हैं, इस मतलब पूरी स्टडी की क्या कहते हैं, क्या ये स्टडी कुछ हमें अलग दे सकता है, क्या ये स्टडी हमें कोई एक अलग तरह के मैटर के बारे में बता सकता है जिसमें हैमिल्टोनियन नॉन हर्मिशियन है लेकिन उसकी एनर्जी रियल है, मतलब वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स, उसमें इमेजिनरी एसेंस भी है बट वो एग्जिस्ट कर रहा है रियल स्पेस में। और इसका आंसर है कि हाँ, ये डार्क मैटर को समहाउ एक्सप्लेन कर सकता है। डार्क मैटर क्या है, एक अनडिटेक्टेबल इनविजिबल है। अनडिटेक्टेबल मतलब कि अभी हम करंट टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। इनविजिबल मींस कि वो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कि वो इंटरैक्ट विथ नॉर्मल मैटर, मतलब वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन करता है। मतलब कि अगर आपके पास नॉर्मल मैटर है और यहाँ पे एक डार्क मैटर है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। तो यही चीज एक डार्क मैटर की प्रॉपर्टीज होती है। अब हमारा जो मॉलिक्यूल आया, क्या वो अनडिटेक्टेबल है? हाँ, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स स्पेस में, इमेजिनरी स्पेस में, तो वो अनडिटेक्टेबल है। क्या वो इनविजिबल है? इसके लिए हमें अभी और सोचना पड़ेगा, हमें उसे लाइट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा क्या ये इनविजिबल है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है कि ये क्या नॉर्मल मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इसके लिए भी हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें जहां पे मैंने एक मॉलिक्यूल, मतलब एक मॉलिक्यूल के बीच में कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिया है, वहां पे कॉम्प्लेक्स मोस्ट पोटेंशियल लिया है, वहां पे अब मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स को देख के ये पूरी स्टडी दोबारा देखनी होगी, क्या ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि जहां पे हमारा फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और क्या वो एनर्जी, वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या उसकी एनर्जी जो है रियल आ रही है, क्या उसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी तो नहीं हो रहा। अब इस चीज में हम अभी दावा नहीं कर सकते, बट हम समवट कह सकते हैं कि हाँ, जो सिस्टम हमने ले रखा है वो कहीं ना कहीं डार्क मैटर को एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज है कि अगर ये डार्क मैटर नहीं है और एक ये स्पेस में एग्जिस्ट करता है, ये रियल स्पेस में एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये नया फॉर्म ऑफ मैटर हो सकता है, क्या ये नई फैमिली ऑफ मैटर हो सकता है? तो इसके लिए अभी हमें आगे इस पे और स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज दिस टू काइंड ऑफ मेजर एनालिसिस। हमने यहाँ पे दो तरह के एनालिसिस करे थे। हमने यहाँ पे आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू को स्टडी करा। यही इन्हीं स्टडी की वजह से हमें कंडीशंस मिली थी, जिन कंडीशंस को एनालाइज करके हमें पता चला कि ये पार्टिकल कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, कहाँ पे नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कहते हैं कि हमने थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करा था। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिया, हमने उसका पोटेंशियल लिया, हमने एक लाइक हाइड्रोजन के दो एटम लिए, उनको साथ में जोड़ा, पोटेंशियल हमने कॉम्प्लेक्स मोल्स पोटेंशियल रखा, हमने फिर उसकी आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू, मतलब हमने उसकी एनर्जी और उसका एक फंक्शन जो उसको डिफाइन करा, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसको उसके अस्तित्व में होने की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, ये हमने निकाला। और हमने फिर उस पर कंडीशंस को अप्लाई करा, और कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद हमने फाइंड आउट करा कि किस रीजन में वो एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे हमें हमारे जो रिजल्ट्स थे वो काफी अच्छे आए थे। आपको इस ग्राफ में यहाँ पे एक पीक दिख रहा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट सा पीक दिख रहा होगा, तो ये वाला ही जो पॉइंट है, यहाँ पे ये पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे इस पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी 1, मतलब प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इसको अगर आप कॉन्टूर प्लॉट में देखोगे तो आप देखोगे कि जैसे जैसे हम जीरो की तरफ बढ़ेंगे तो ये पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की, मतलब प्रोबेबिलिटी, उसके अस्तित्व में होने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है। तो अब हम यहाँ पे पूरी चीज को समराइज करते हैं। हमारे पास क्या है कि हमने नॉन हर्मिशियन फिजिक्स को यूज करा। नॉन हर्मिशियन फिजिक्स क्या हुई, जिसमें हमने क्या कहते हैं, एनर्जी जो है हमारी लॉस और गेन हो रहा है। हमने ऑपरेटर नॉन हर्मिशियन लिया, लेकिन हमने उससे प्रूव करा कि क्या उससे ऐसा हो सकता है कि हमारी एनर्जी सिर्फ रियल आए, उसमें कोई भी लॉस ना हो। और हमें पता चला कि हाँ,
नॉन हर्मिशियन फिजिक्स को यूज करके हम रियल एनर्जी को भी निकाल सकते हैं, और रियल एनर्जी से हमें क्या कहते हैं, ये ओवरऑल पता चला कि ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको जो अभी हमारे करंट टेक्नोलॉजी से दे आर अनडिटेक्टेबल, they might be invisible, and if we include the gravitational force interaction between them, then they can somehow define dark matter. और अगर वो dark matter define नहीं कर रहे तो वो कुछ और explain कर रहे हैं. So this was overall everything about non-Hermitian physics and how it is able to define the conservative systems. Now question is this, क्या non-Hermitian physics interesting है? And the answer to this question, yes. नॉन हर्मिशियन फिजिक्स इसीलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैथमेटिक्स के सिद्धांत से बिल्कुल उलट है. मैथमेटिक्स के सिद्धांत कहते हैं कि आपको हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर एनर्जी वो हमेशा आपको हर्मिशियन लेना पड़ेगा, और वो हर्मिशियन होगा तभी आपको क्या कहते हैं जो एनर्जी है वो रियल आएगी. लेकिन ये स्पेसिफिक हमारा जो नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर लेके हमने स्टडी करी है और फिर भी हमारी एनर्जी रियल आई है, कोई लॉस नहीं आया है, तो ये चीज हमें ये बताती है कि मैथमेटिक्स के सिद्धांतों में अभी भी काम करने की जरूरत है और उनको और डिफाइन करने की जरूरत है. ठीक है, यहाँ पे आप एक छोटा सा मीम देख सकते हो कि क्या कहते हैं, ये यहाँ पे कह रहा है, ये हर्मिशियन यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ मेरे पास ही रियल स्पेक्ट्रा, मेरे पास ही रियल एनर्जी हो सकती है, और नॉन हर्मिशियन फिजिक्स जो कि इससे पहले पॉसिबल नहीं था, लेकिन सीएम बेंडर के काम के बाद से ये चीज पॉसिबल हो गई कि नॉन हर्मिशियन फिजिक्स में भी अब रियल एनर्जी आ गई है. So that was it basically about my talk, and I am now open for questions. All right. Thank you. Thank you so much. Am I audible properly? I hope so. Yeah. Yeah. Okay. So thank you. Thank you, Bhaskar. It was, being honest, it was quite complex to, as you said, that complex conditioning. So it was quite complex to understand some of the theories of the physics. बट एट द सेम टाइम उस कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा जो नेचर और नेचर के साथ जुड़ी हुई एग्जिस्टेंस और उसके साथ जुड़ी हुई एनर्जीज के जो अलग अलग सिद्धांत हैं, वो जो आपने बहुत ही बेसिक लेवल पर आज बताए और उनको समझने का जो मौका हम सभी को मिला, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम कंप्लीटली सेपरेटली डिफरेंट थीम, सेपरेटली डिफरेंट डिस्कोर्स ऑन द कोर्सेज. सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग. Now, some questions which I would like to ask you is that you were also talking about कि आप डार्क मैटर के बारे में बात कर रहे थे कि हमें ये नहीं पता चलता कि डार्क मैटर है या नहीं है, पर उसके होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. So how might this non-Hermitian quantum mechanics provide insights into the nature and behavior of dark matter? वो उसकी प्रोबेबिलिटी वो है या नहीं है वो तो है ही, पर इसके अलावा डार्क मैटर का क्या नेचर हो सकता है और किस तरीके से वो बिहेव करता है. इफ यू कैन गिव अस अ लिटिल आइडिया, अ लिटिल मोर आइडिया अबाउट दैट. So basically, the study which I have done, we have claimed that it can be dark matter, but the question is like the molecule which we are studying, उसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो उस पे जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी आई थी वो कॉम्प्लेक्स आई थी. मतलब कि अगर डार्क मैटर ऐसा है तो उसकी एनर्जी क्या है कि लॉस, उसकी एनर्जी कुछ टाइम के बाद कम होती जा रही है, फिर वो डिके हो रहा है, फिर उसके बाद उसकी एनर्जी लाइक सम प्रोसेसेस के थ्रू इंक्रीज कर सकती है, फिर डिके कर सकती है. तो ये चीजें हो सकती है वहां पे, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा काइंड ऑफ कुछ. अगर हमें अभी रिसेंट में डार्क मैटर के बारे में हमें एज सच कोई प्रॉपर्टी नहीं पता है कि उसकी एनर्जी लॉस कर रही है कि गेन कर रही है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स की अभी हमने स्टडी करी है वहां पे एनर्जी लॉस कर रही है और गेन कर रही है. लेकिन जब हम बाद में कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, ऐसे कंडीशंस, हम उन कंडीशंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे उनकी एनर्जी कंजर्व हो, कोई लॉस ना हो, तो ऐसी कंडीशंस भी हमें मिलती हैं, वो अप्लाइएबल है. तो मतलब कि अगर ये मॉलिक्यूल डार्क मैटर को डिफाइन करता है तो दैट पर्टिकुलर डार्क मैटर, अगर there can be a loss or gain of energy, but there can also exist some conditions, certain conditions over which that particular molecule is stable. तो मतलब कि वहां पे लॉस और गेन नहीं भी हो सकता है. तो दैट इज समथिंग विच इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ डार्क मैटर. अदर देन दैट, इफ आई से लाइक क्या कहते हैं, क्या ये स्पेसिफिक स्टडी डार्क मैटर को एक्चुअली में एक्सप्लेन कर सकती है, नहीं कर सकती है? तो हाँ, मतलब
the professor to whom I have worked this, उनका ये मानना है कि हाँ ये study, this particular study can actually define dark matter. All right, so the conclusions are based on the certain conditions, but apart than that, this whole theory and the whole idea of dark matter is certainly very interesting. Another question which also arises, that why in the recent years non-Hermitian quantum mechanics becomes so important as the area of study. Yeah, that's actually a quite interesting question. तो नॉन एमिशन फिजिक्स के एक्चुअली में मतलब कि इसके एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है. मैंने कहा ना कि actual the systems where we exist, the reality where we exist, there always some loss of energy. Okay, like our systems are not like the flask, they are more like a normal bottle where the energy are continuously transferring. तो ऐसे systems को study करने के लिए non emission physics becomes a key important tool to study these systems. One, like इसमें आप क्या कहते हैं, you don't have to consider loss or gain of energy. You naturally get the equations in a way that it defines the rate of loss of energy. तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको कुछ से कुछ ऐड ऑन नहीं करना, कुछ ऐड ऑफ नहीं करना. आप वो ऑपरेटर यूज करो, नॉन एमिशन ऑपरेटर. यू स्टडी द सिस्टम्स, यू इम्प्लाई द कंडीशंस बाय द मीन टू से जो रियलिटी को रियलिटी को एक्सप्लेन करती है, दोज कंडीशंस, कि आपकी द प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन वन. द ऑर्थोगोनैलिटी, दिस इज द ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन. द बाउंड्री कंडीशन की आपका जो आप अगर बोलते हो कि my system can never be like exist at the infinity. If my system exists here, then its probability finding at the infinity is going to be 0. तो ये जब आप कंडीशंस, दो रियलिटी को एक्सप्लेन करने वाली कंडीशंस व्हेन यू इम्प्लाई ओवर द सिस्टम, तो आपको पता चलता है कि क्या कहते हैं, नॉन हेर्मिशियन से आप डायरेक्टली क्या कहते हैं लॉस और गेन को एक्सप्लेन कर सकते हो. So that's how it becomes important to study the system. Like electrical systems are there, जहाँ पे some gain or loss of energy हो रहा है. I said theoretical systems, जैसे यहाँ पे अभी हमने complex molecules की study करी, वैसे ही बहुत सारे ऐसी systems जहाँ पे आपके energy का loss हो रहा है. वैसे systems explain करने के लिए it becomes a important tool. All right, that's very interesting. And once again, thank you. And the last question which I am asking is, I think it was GSTS 122 and it was 2nd of July 2023 जब आपने अपना पहला टॉक दिया था, The Magic of Light, a brief introduction. और उसके बाद you're connecting back again with us in 2026. So what was your experience with this platform? Something you would like to share with our today's audience? And also, this is once again you are addressing 270th talk session, which is a good number. So what was your experience has been with this initiative? Overall, if I say like GSTS has actually provided me this platform, like I had went through some of the like talks of the GSTS, previous talks of the GSTS also. So it's not just a platform for the people from the humanity background or people from the political science background. It's a platform which is for everyone. And this is something which I like the most about GSTS. Like not everywhere you can find a platform where students like us who are from a completely different background are able to present their views to to general domain. So it is something which GSTS has successfully provided us. Other than if I say that my previous talk was over the light, so I was like a bit immature over there. It was more theoretical. Nothing was mine there. But right now, after during my post graduation, the work presented here is like mine. So this particular platform has provided me this opportunity to present my views, my ideas, and my work here. So it is also something which GSTS has successfully provided its speakers like me. All right. Thank you, Bhaskar. So from a graduate scholar to a research intern, you have also grown up with this initiative so far. Thank you, Bhaskar, and once again, congratulations for such a wonderful presentation. That too on such a technical and complex topic. All right. Now proceeding further, एक बार फिर से मैं आज के अपने मुख्य अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर राकेश कुमार रजक सर को
आमंत्रित करना चाहता हूँ उनके अपने फाइनल रिमार्क्स के लिए एंड सजेशंस के लिए। सर प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू शैलेंद्र। आज का जो टॉपिक है नॉन हर्मिशन क्वांटम मैकेनिज्म, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यह कोई छोटा टॉपिक नहीं। हम इस टॉपिक को इस रूप में देख सकते हैं कि जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे इलाहाबाद में गंगा का जो संगम है, जैसे गंगा जमुना और सरस्वती का मिलन हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से जो नॉन हर्मिशन जो क्वांटम मैकेनिज्म है, यह केवल फिजिक्स ही नहीं बल्कि फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी, यह तीन क्षेत्रों के संगम पर विकसित हुआ है। और यह जो पारंपरिक, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो क्वांटम सिद्धांत की जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए एक रियल वर्ल्ड की जो जटिल प्रोसेस को समझने में हमको मदद करता है। हालांकि यह जो शब्द सबसे पहले 1996 में यह शब्द नाओमिची हतानो और डेविड आर नेल्सन द्वारा अपने रिसर्च जो पेपर था, उस रिसर्च पेपर में सबसे पहले इस शब्द को लाया गया। और यह एक तरीके से कह सकते हैं कि इसे उन लोगों ने यह कहा कि यह भविष्य का एक टेक्नोलॉजी है, भविष्य का एक तकनीक है। और भारत, खास करके जो भारत जो है, इस टेक्नोलॉजी को हम कह सकते हैं कि नेशनल क्वांटम मिशन के तौर पे जो है 2023 से लेकर के 2031 तक के दौरान जो है, इस बीच में एक क्वांटम कंप्यूटिंग और सेंसिंग पर एक ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रही है। इसका आगे का मिशन है, एक प्रोजेक्ट है। हालांकि हम यह देख रहे हैं कि यह जो मिशन है भारत सरकार का, यह नॉन हर्मिशन क्वांटम मैकेनिज्म का, इसमें केवल जो हमारे प्रिय अनुज जो है फिजिक्स पे, इन्होंने जो मॉडर्न फिजिक्स था उस पे आपने बहुत ही विस्तृत चर्चा की। लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में जो एक अलग तरीके का योगदान जो चल रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल सिस्टम्स को ले सकते हैं, फोटोनिक्स में इसका यूज हो सकता है, साथ ही साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में भी जो है इसका एक संभावित प्रयास आने वाले समय में दिख रहा है। साथ ही साथ सेंसर टेक्नोलॉजी में, और साथ ही साथ जो सिग्नल प्रोसेसिंग में जो है इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो ऑप्टिकल डिवाइसेज है जो बनाए जा रहे हैं हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जो ऑप्टिकल डिवाइसेज बनाए जा रहे हैं, जो लॉस और गेन का जो थ्योरी है उसको संतुलित करके जो है एक बेहतर कंट्रोल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि फिजिक्स में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है कि लेजर को लेकर के जो आपने बोला कि लेजर में एनर्जी एम्प्लीफिकेशन को समझाने के लिए नॉन हर्मिशन जो थ्योरी है उसका उपयोग हम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी हम इसकी पूरी तरीके से इसको नकार नहीं सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी हम देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या जो लीनियर अलजेब्रा है उसमें भी यूज में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बायो ऑर्थोगोनल बेसिस पे या फिर एक तरीके से स्पेक्ट्रल थ्योरी में भी इसका उपयोग देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हम यह कह सकते हैं कि गणित जो है, जो मैथमेटिक्स है, इस फॉर्मूले पे, इस सिद्धांत पे जो है एक फाउंडेशन का, एक आधार का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से हम यह देख सकते हैं कि तीनों, मतलब कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी, ये तीनों मिलकर के जो है इस विषय को, जो नेशनल नॉन हर्मिशन जो क्वांटम थ्योरी है, यह थ्योरी जो है, यह सब्जेक्ट जो है एक एप्लीकेशन की तरफ ले जाते हैं। एप्लीकेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको लेकर के एक मतलब कि एक उदाहरण के तौर पे यह कहा जा सकता है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है, वो चाहे टेक्नोलॉजी का हो, वह चाहे मैथमेटिक्स का हो, वह चाहे फिजिक्स का हो, यह अलग अलग विषय मिलकर के जो है एक नए वैज्ञानिक जो है एक समझ जो है हमारी जो है सो डे बाई डे विकसित हो रही है। और यह न केवल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि यह एक तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो डेवलपमेंट में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
इसलिए यह आने वाली जो जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां है, उसके लिए भी यह एक बहुत ही बड़ा रोचक जो है मैकेनिज्म है, और यह सैद्धांतिक एक भौतिकी को जो है काफी ज्यादा समृद्ध कर रही है। हम अपने भारत की जो भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ भी अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स काफी ज्यादा समृद्ध थी। चाहे जीरो के आविष्कार से लेकर के हो, या अलग अलग जो सूर्य का चक्कर लगाने का हो, अलग अलग जो सारी जो हमारी जो थ्योरी, कहीं ना कहीं भारत एक ऐसा कह सकते हैं कि विश्व को एक नई दशा और दिशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी माध्यम से प्रदान कर रही है, और भारतीय ज्ञान परंपरा उसमें काफी तेजी से आगे बढ़ गई है। इसलिए जो हमारा जो नॉन हर्मिल्टन जो क्वांटम मैकेनिज्म पे आपने जो बोला, बहुत ही शानदार तरीके से इस बातों को रखा, लेकिन इसमें जो भविष्य के जो सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर के, और इस भविष्य के सवाल में अभी भी जैसे आप समुद्री रास्ते में बहुत सारे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर के, या अलग अलग तरीके से जो ओपन सिस्टम्स को लेकर के जो डेवलपमेंट हो रही है, इसमें भी थोड़ी सी चर्चा करने की आवश्यकताएं थी। लेकिन आपने बहुत ही अच्छा मतलब कि बोला, और आपने इस तरीके से बोला कि हमारे अंदर का भी एक फिजिक्स अपने समय का जग चुका, और इसको हमने देखा और पढ़ा, समझा भी, ठीक है। और हम लोगों को भी अपने समय का जैसे फिजिक्स जब हम लोग पढ़ते थे, तो सर जो है एटॉमिक नंबर जो आपने बहुत सारी चीजों को बताया, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो है हम लोग 108 तक जो है जो एटॉमिक नंबर था वहां तक भी हम लोग पढ़ते थे। और इसलिए आपने जो सारी चीजें बोला, हमने इसको काफी अच्छे से सारी चीजों को समझा, और आपने बहुत ही अच्छे से इस बातों को रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे भी आने वाला समय में जीएसटीएस के लिए एक आप अमूल्य धरोहर हैं। आपने 122 में आए, और साथ ही साथ अभी 270 में आए, और ईश्वर से यही मतलब की प्रार्थना है कि आप आने वाला समय में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े। अभी आप स्पीकर के तौर पे आए, आने वाला कल में आप गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे आए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much for your inspiring words, for your appreciations, and for your uh, remarks as well. And thank you so much once again for joining us today as a guest of honor for this 270th talk session. All right, now proceeding further, it is time to actually announce, not invite, announce our to-be speaker or next speaker for the Sunday. She is quite busy, so she is not able to join us today. So the next speaker is Miss Khushi, and the topic on which she would be speaking is from reels to reality transformation in Kathak dance, mainly uh, uh, considering the fact that how it has been has been changing in the contemporary times. All right. So with this, it is time to wrap up the session, and for wrapping up the session, I would like to hand over the screen to Dr. Manish Karmawar. Okay, Sarens, really interesting. Listen to you as always good. So a Hindi student, Hindi master's student from the Hindi background, Kalidas, Kabir Das, Chaya Bhadan, a professor from history. They both are talking about the energy and what you produce here. It's really interesting listening, listening Rathor and listening Dr. Rakesh. It's really say very soothing, and that's why the idea of education. It's not that Bhaskar is doing something on energy and nobody know about all these things because it's a very complex. Sometimes what is happening, you go to the economics class, you go to the mathematics class, they are playing with the numbers, and the social science, we are playing with the theory. So this whole energy between the number and the theory, numbers and the theory and the practical, it's somehow
we have to connect. This topic is a very important, and Bhaskar, we also studied this topic. One of the teacher and the scholar also just messaged me in this, why, what are the energy, that means, and the Aristotle, once upon a time, I'm not very fond about the Aristotle, because in this our mindset was triggered that we start with Aristotle, etc., to connect with the past, connect with the to the present. But Aristotle talk one thing is very important, that how energy is what, how our potential into action. Everybody's having energy. I think the whole right now 40, 42, 43 students are here. Everybody's having energy, and how that energy comes into the action. This is the most important idea of the energy, and everybody's talking about the energy right now. You also and because I'm also a science student, but it's long back. It's a almost 25 years back where I understood learn science. But science is everywhere. That's why the social science is everywhere. So why this division about the social science and the science in the commerce? So I think now the time where the government and the world think about the delimit all the ideas. Everybody has to work about learn about the numbers, learn about the computers. Because if Salenz is not knowing about the computers, how would he conduct the GSTS session 270, and how he conducted so many sessions from last 1 year? So what is idea through it's a very interesting time, because I'm not expert on your topic, but I have to wrap up the session. So this line is very strong, Bhaskar, about the, we have to blur this line. That means science, social science, commerce, because energy in the commerce may be money. In the social science, it's maybe how you use our potential. And the Bhaskar was talking about the energy, how we learn and unlearn about the energy. But energy is everywhere. So what is reality? Reality is energy, and we divided this energy into the physics, chemistry, biology, mathematics, social science, and the commerce. So right now, time that we are learning MSc in energy, not MSc in the energy. We are going to talk in MSc, but energy is everywhere. So the blur that line, and that's why this initiative and what you are talking and what we try to learn from your talk, it's a very, very important. So thank you, Bhaskar. It's a very interesting idea, and for the energy in philosophy and history, because the whole history of the energy, ancient thoughts about the energy, early philosophy about the energy. Do you know the focus of motion and the force? Without motion is nothing. You know about the wheel. We decipher wheel, and now look, everybody move motionless become the motion. If we talk about the 17th to 18th century, Newton, and the living force about the Newton. If you move about the 19th century, law of conservation of energy, modern physics, it's what Einstein idea. So the history of everything. So in history also we learn energy, but in the simple different way. And then philosophy, the कभी भी जो है वो जो ऊर्जा है वो परिवर्तन होती है, और ये क्रिया का मूल आधार. That means it's a natural process. So energy is the most important idea. And in my personal life, I get energy from the sun. Anybody get energy from the moon? Likewise, so energy is everywhere. How you utilize that energy, this is the most important thing. So on last, energy is the principle of change. It's not physics, not chemistry, not history, not Hindi. In philosophy and conserved physics quantity in history and the science. मतलब इसका मतलब क्या है? ऊर्जा जो है ना वो परिवर्तन का आधार है. That means if through that energy
you can change something, someone, it's a real energy. I don't know, Bhaskar, what you are understanding from my like my summarization. Maybe I diverting myself in a different way. If I'm diverting, so maybe due to I'm not into it too much about the theory. So thank you very much, Bhaskar, for here the second time, and Dr. Rakesh reiterated the same thing. We would like to invite you as a guest of honor in the coming um, sessions also. As always, Sailendra, listening you is a very soothing effect, and Dr. Rakesh try to become a very important force for the today's idea. I know it's very tough topic for you, so you learn and unlearn so many things. So it's good, Thank you. and I think Yes, sir. you are in the college right now. I see behind you the old cabin of Samlal College evening. I spent so many years before that small parts. Okay, so thank you, Dr. Thank you, Rakesh, sir. for giving us a wonderful idea. So it's time to wrap up. All principal, Samlal Evening College, IQAC in charge, teacher in charge, Samlal College, and Samlal College teachers, and the whole fraternity, and my dear scholars from graduation, post-graduation, MPhil, and PhD who joined this platform. Thank you very much, my colleagues, and we'll meet with the next Sunday with the very beautiful idea, Reels to Reality. Thank you very much. In between, how I forget my department. In the coming 5th and 6th, we are going to organize a 2-day conference. You all are invited in this conference. We are having 12 high commissioners and ambassadors are coming, and 20 in front of you. So it's a huge number of the diplomats, high commissioner, and dignitaries are coming. And that 100 papers they are going to present. And one beautiful idea, we are also portray a short movie film festival, the Frames of Connection. Saffron to Savannah, like this we are portraying. So it's a very good event. I invite all of you to join this conference and enjoy the dignitaries, the high commissioners, and become true international relations idea. So thank you very much. So, and the whole idea is going to at one place, Satyakam Bhavan, Department of African Studies, University of Delhi, where 250 strongest scholars are working to energize Africa, Mr. Bhaskar Singh. So thank you very much. Have a nice day. Take care. It's time to leave. Thank you.